تم ٹھیک کہتے ہو، ڈاکٹرز میں بھی بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن مجھے بس اچھے لگتے ہیں۔ بس محبت ہے مجھے ڈاکٹرز سے، میں بھی ان کی ساری خامیاں اگنور کر سکتی ہوں۔ سالار کی آنکھوں میں نیند یکدم غائب ہو گئی۔ وہ کسی اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی۔ اس نے اسے کسی اور پیرائے میں لیا۔ تمہیں واقعی ڈاکٹرز سے نفرت ہے؟ وہ اب بے یقینی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ جو چیز تمہیں پسند ہو میں اس سے نفرت کر سکتا ہوں؟ مذاق کر رہا تھا میں۔ امامہ کے ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ آئی۔ اس نے بھی سالار کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے کہا، اب مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ محبوب کی دو خصوصیات یونیورسل ہوتی ہیں، وہ بے نیاز ہوتا ہے اور اپنی بے نیازی سے بے خبر بھی، اور یہ دونوں خصوصیات اس کے محبوب میں بھی تھیں۔ جلال انصر سے ایک بار پھر شدید قسم کا حسن محسوس ہوا، لیکن رشک اسے اپنے آپ پر آیا کہ وہ اس کے پاس تھی اور اس کی تھی۔ صاحب نے نیوز پیپر کا کہا تھا کہ آپ سے پوچھ لوں، اور یہ میگزین ہے، ان میں سے جو پسند ہے بتا دیں، میں لے آیا کروں گا۔ نیوز بروکر نے اسے ایک کاغذ تھماتے ہوئے کہا جس پر اخبار اور میگزینز کی ایک لسٹ تھی۔ وہ نیند میں بیل بجنے کی آواز پر اٹھ کر آئی تھی۔ کچھ دیر تک تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سلار کے گھر اس نے صرف اتوار کو اخبار دیکھا تھا، وہ بھی سلار نے ہاکر سے خود لیا تھا۔ وہ خود آفس میں ہی اخبار دیکھتا تھا۔ اب وہ یقیناً اس کی وجہ سے اخبار لگوا رہا تھا۔ ایک نظر اس لسٹ پر ڈال کر اس نے ہاکر کو ایک اخبار اور ایک میگزین کا بتایا۔ وہ اخبار اسے تھما کر چلا گیا۔ وہ جمائیاں لیتے ہوئے اخبار اندر لائے اور رکھ دیا۔ 10 بجنے والے تھے۔ کھڑکی سے باہر دھند چھٹ رہی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ تھی۔ جتنی دیر میں ملازمہ آتی وہ اخبار دیکھ چکی تھی۔ ملازمہ آج اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ مالی بھی تھا۔ وہ فرقان کے پودے دیکھنے آیا تھا۔ وہ سالار کے پودے اتوار کے دن دیکھنے آتا تھا یا پھر نوشین خود ہی اس کے ساتھ وہاں آتی تھی۔ سالار کے اپارٹمنٹ کی ایک چابی ان کے پاس بھی تھی۔ آج نوشین نے یہاں امامہ کی موجودگی کی وجہ سے اسے بھیج دیا تھا۔ وہ اس کے ٹیرس پر جانے کے کچھ دیر کے بعد خود ہی باہر نکل آئی۔ مالی کے پاس کھڑے خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے دوران اسے احساس ہوا کہ اسے کسی قسم کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ماہرانہ انداز میں اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ ملازمہ نے بڑی پرجوش انداز میں کچن میں رکھے ہوئے برتنوں کو نوٹس کرنے کے بعد تعریف کی۔ امامہ بے اختیار خوش ہوئی۔ باجی، اب یہ گھر گھر لگ رہا ہے، اس نے امامہ سے کہا۔ وہ سالار کی اسٹڈی کو ویکیوم کر رہی تھی۔ امامہ مسکراتی ہوئی سالار کی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ڈسٹ صاف کرنے لگی۔ باجی میں کرتی ہوں، آپ رہنے دو، ملازمہ نے اسے روکا۔ نہیں، تم باقی سب کر لینا، میں ابھی فارغ ہوں، اس لیے کر رہی ہوں۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ نہیں چاہتی کہ سالار کا کوئی کاغذ ادھر ادھر ہو جائے، لیکن یہ سوچتے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس گھر میں اس سے پہلے اس اسٹڈی ٹیبل کو اتنے عرصے سے وہی ملازمہ ہی صاف کر رہی تھی۔ میل ٹرے دعوتی کارڈز کے بند اور کھلے لفافوں سے تقریباً بھری ہوئی تھی۔ امامہ نے ایک لفافہ کھول کر دیکھا۔ وہ کسی افطار پارٹی کا انویٹیشن تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ سارے لفافے کھول کر دیکھتی گئی۔ سب کارڈز کسی نہ کسی افطار پارٹی یا تقریب سے متعلق تھی، اور بعض کارڈز میں تو وہ 2 یا 3 جگہوں پر بھی انوائٹڈ تھا۔ وہ یقیناً بے حد سوشل زندگی گزار رہا تھا۔ یہ اس کا اندازہ تھا۔ یقیناً وہ اس کے گھر آ جانے کی وجہ سے پچھلے ایک ہفتے سے ان پارٹیز میں نہیں جا رہا تھا۔ یہ اس کا ایک اور تجزیہ تھا۔ 15-20 کارڈ دیکھنے کے بعد اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اس نے کارڈ اٹھا کر واپس رکھ دیے۔ کچھ اور کارڈ دیکھتی یا نیچے میل سے کسی لفافے کے ایڈریس پر نظر ڈال لیتی تو شاید اسے سالار کا شبہ نظر آ جاتا کہ وہ انویسٹمنٹ میں تھا یا پی آر میں۔ نہیں، کم از کم وہ یہ جھوٹ تو ضرور پکڑ سکتی تھی۔ باجی، رات کو کوئی مہمان آئے تھے؟ وہ ملازمہ کی آواز پر چونکی۔ وہ ایش ٹرے ہاتھ میں لیے کچھ حیرانی سے وجہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، امامہ نے سوال سمجھے بغیر کہا۔ تو یہ سگریٹ کس نے پی ہے؟ سالار صاحب تو سگریٹ نہیں پیتے۔ ملازمہ بے حد حیران تھی۔ امامہ کچھ دیر بول نہیں سکی۔ ملازمہ جیسے سالار کے بیان کی تصدیق کر رہی تھی، یعنی وہ واقعی عادی نہیں تھا جو ایک آدھ سگریٹ وہ بھی کبھی کبھار پیتا ہوگا۔
اسے ملازمہ کسی مہمان کا پیا ہوا سگریٹ سمجھ لیتی ہوگی۔ اوہ ہاں، اس کے کچھ دوست آئے تھے، مجھے یاد ہی نہیں تھا، اماما نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ڈور بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں، اماما اس سے کہہ کر باہر نکل آئی۔ لانڈری کلیکٹ کرنے آئے ہیں۔ دروازے پر ایک لڑکا سالار کے کچھ ڈرائی کلین اور دھلے ہوئے کپڑوں کے ہینگرز لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کی طرف ایک پل کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، کپڑے چیک کر لیں۔ بل کے ساتھ لانڈری کے لیے بھیجے گئے کپڑوں کی لسٹ بھی تھی۔ اماما نے ہینگرز لاؤنج میں لانے کے بعد باری باری لسٹ اور کپڑوں کو ملانا شروع کیا۔ کپڑے پورے تھے۔ ملازمت تب تک باہر نکل آئی۔ اماما بل کے پیسے لینے اندر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے ملازمہ کو دروازے پر لانڈری بوائے کو ایک لانڈری بیگ تھماتے ہوئے دیکھا جس کے اوپر ایک لسٹ چسپاں تھی۔ یقیناً وہ ان کپڑوں کی لسٹ تھی جو لانڈری کے لیے دیے جا رہے تھے۔ لانڈری بوائے نے ایک رائٹنگ پیڈ پر کچھ اندراج کر رہا تھا۔ باجی، آپ نے بھی دینے ہیں کپڑے؟ ملازمہ نے اسے آتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں یہ بل دینے آئی ہوں۔ اماما نے بل کی رقم اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔ اس نے جواباً ایک رسید اس کی طرف بڑھا دی۔ بل تو مہینے کے شروع میں اکٹھا ہی جاتا ہے۔ ملازمہ نے اسے روکا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آ گئی۔ اماما نے رسید پر نظر ڈالی۔ وہ سالار کے کپڑوں کی لسٹ تھی جو وہ لے کر گیا تھا۔ تم نے لانڈری کے کپڑے کہاں سے لیے ہیں؟ اماما نے اس لسٹ کو پڑھتے ہوئے ملازمہ کو روکا۔ سالار صاحب کپڑے بیگ میں ڈال کر اوپر لسٹ رکھ جاتے ہیں، لانڈری میں ہی رکھتے ہیں بیگ۔ ملازمہ یہ کہہ کر دوبارہ اندر چلی گئی۔ اماما نے بل پر نظر ڈالی۔ لانڈری تو وہ خود بھی کر سکتی تھی۔ ہر ہفتے اتنے پیسے اس پر خرچ کرنا فضول خرچی تھی، اس نے سوچا۔ ملازمہ ابھی وہیں تھی جب ایک آدمی وہ پردے لے کر آیا جو اس نے بنوانے کے لیے دیے تھے۔ باجی، آپ نے کوئی پردے بننے کے لیے دیے ہیں؟ ملازمہ نے انٹرکام کی بیل بجنے پر ریسیور اٹھا کر اس سے پوچھا۔ اماما کچھ حیران ہوئی۔ ہاں، کیوں؟ وہ نیچے گیٹ پر ایک آدمی لے کر آیا ہے۔ گارڈ انٹرکام پر پوچھ رہا ہے۔ ہاں، بھیج دو، باجی نے پردے بنوانے ہیں، ملازمہ نے اس کو بتا کر ریسیور میں کہا۔ ریسیور رکھ کر وہ دوبارہ لاؤنج صاف کرنے میں لگ گئی تھی۔ کچن کاؤنٹر پر گلاس سیٹ کو وہ کپڑے سے صاف کرتے ہوئے اماما کو عجیب طرح کا احساس کمتری ہوا۔ اس نے اتنے دنوں وہاں چلتے ہوئے کئی بار انٹرکام کو دیکھا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس انٹرکام کی وہاں کیا افادیت ہے، جبکہ دروازہ اتنا قریب تھا۔ ملازمہ اس گھر کی ہر چیز کو اس سے زیادہ ذہانت، پھرتی اور سہولت کے ساتھ استعمال کر رہی تھی۔ سالار، لاؤنج اب اچھا لگ رہا ہے نا؟ سالار نے لاؤنج کی کھڑکیوں پر لگے نئے پردوں پر ایک نظر ڈالی۔ وہ ابھی چند لمحے پہلے گھر آیا تھا۔ اماما نے بے حد خوشی کے عالم میں آتے ہی اسے اطلاع دی۔ وہ نہ بھی دیتی تب بھی لاؤنج میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ اس واضح تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ بہت، اس نے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اماما نے فخری انداز میں پردوں کو دیکھا۔ وہ آج بھی افطاری راستے میں ہی کر آیا تھا۔ اماما نے افطاری فرقان کے گھر پر کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ تو جناب کا آج کا دن کیسا گزرا؟ کھانا شروع کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا۔ وہ اسے پورے دن کی ایکٹیویٹیز بتانے لگی۔ آج ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ پہلی تفصیلی گفتگو تھی۔ سالار نے اسے دن میں 2 بار 1 یا 1.5 منٹ کی کال کی تھی، مگر بات صرف حال احوال تک ہی رہی، یعنی آج بہت کام کرنا پڑا۔ سالار نے اس کے دن کی تفصیل سن کر کہا۔ کیا کام؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اماما نے اس کی بات پر کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ جتنا بھی کیا ہے بہت ہے، میں تمہاری لانڈری خود کر دیا کروں گی اگلے ہفتے سے، اماما نے سالار کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اور پریس بھی کر دیا کروں گی، میں تمہیں کپڑے دھونے کے لیے نہیں لے کر آیا، سالار نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے پتا ہے، لیکن میں فارغ ہوتی ہوں سارا دن، اور پھر مجھے اپنے کپڑے بھی تو دھونے ہوتے ہیں، تو تمہارے بھی دھو سکتی ہوں۔ تم اپنے کپڑے کیوں دھو گی؟ لانڈری وین ہر ہفتے آتی ہے، تم اپنے بھی دے دیا کرو، سالار نے کھانا کھاتے کھاتے رک کر کہا۔ پیسے ضائع ہوں گے، اس نے بے اختیار کہا۔ کوئی بات نہیں، سالار نے اسی انداز میں کندھے اچکا کر کہا۔ اماما نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اور میں سارا دن کیا کروں؟ وہی جو دوسری عورتیں کرتی ہیں، سویا کرو، ٹی وی دیکھا کرو، فون پر دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے کوئی دوست نہیں ہیں، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔
सलार ने कुछ हैरान होकर इसका चेहरा देखा। कोई तो होगी। नहीं, कोई भी नहीं है। क्यों? वो खाना खाते हुए कुछ सोचने लगी थी। फिर इसने कहा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो मैं इतनी खौफजदा रहती थी कि किसी को दोस्त बनाने का ख्याल ही नहीं आया। दोस्ती होती तो फिर सवाल होते मेरे बारे में, फैमिली के बारे में। फिर अगर कोई घर आता और अब्बू को, फैमिली को कोई पहले ही से जानता होता तो, या सईदा अम्मा को ही। दोस्ती इस वक्त बड़ी महंगी चीज थी मेरे लिए। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर ऑफिस जॉब में कुलीग्स के साथ थोड़ी बहुत गपशप होती थी, लेकिन मुझे अकेले रहने की इतनी आदत हो गई थी कि मैं इन लोगों के साथ कभी भी नहीं रहती थी। मैं इनके साथ घूम फिर नहीं सकती थी, कंफर्टेबली इनके घर नहीं जा सकती थी, अपने घर नहीं बुला सकती थी। कैसी दोस्ती होती फिर? इसीलिए मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, पेंट करना अच्छा लगता था। लोगों से मेल जोल होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सा सोशलाइज करना चाहिए। अब तुम्हारा घर है, तुम कुलीग्स को इनवाइट कर लिया करो, या कम से कम इनसे फोन पर ही बात कर लिया करो। वो इसे बड़ी संजीदगी से समझा रहा था। तुम खुद सोशल हो इसलिए कह रहे हो। अम्मा ने जवाबन कहा, हाँ, मेरी जॉब की जरूरत है सोशल होना। माह रमजान के बाद कुछ फंक्शंस हैं, डिनर भी हैं कुछ। तुम्हें मिलवाऊंगा कुछ दोस्तों से भी, अच्छा लगेगा तुम्हें। वो इससे कह रहा था, मैंने तुम्हारे डेस्क पर देखे हैं अफ्तार डिनर्स के कार्ड्स। तुम मेरी वजह से नहीं जा रहे? अम्मा ने कहा, नहीं, मैं अफ्तार पार्टीज या डिनर्स में नहीं जाता। सलाह ने सरसरी अंदाज में कहा। क्यों? वो हैरान हुई। क्योंकि मैं समझता हूँ पार्टीज माह रमजान की स्पिरिट का मजाक उड़ाती हैं। मैं माह रमजान में किसी के घर अफ्तार पर नहीं जाता। लेकिन फुरकान के घर तो जाते हो, अमामा ने बेसाख्ता कहा। वो मुस्कुरा दिया। वो इस वक्त भी फुरकान के घर से आया हुआ खाना खा रहे थे। मैं फुरकान के घर माह रमजान से पहले भी खाना खाता रहा हूँ, और अगर वो मुझे अफ्तार पार्टी के लिए बुलाता है तो खाने में कोई एहतमाम नहीं करता। हम वही खाते हैं जो इसके घर में आम दिनों में पकता है, लेकिन आम दिनों में इसके घर में ये नहीं पकता। सलार ने टेबल पर पड़ी तीन चार चीजों की तरफ इशारा किया। फिर वो मजीद हैरान हुई। ये सारा एहतमाम फुरकान और भाभी तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है, तो तुम्हारे लिए सहरी और अफ्तारी में भी एहतमाम हो रहा है। वरना तो हम सादा खाना खाते हैं। माह रमजान में हम लोग अपने किचन के लिए ग्रोसरी आम महीनों की निस्बत आधा खर्च करते हैं, और आधे पैसों से हम किसी और फैमिली को पूरे महीने का राशन मंगवा देते हैं। खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारा। सलार ने इसे मुतवज्जे किया। वो खुद खाना खत्म करके अब मीठा खा रहा था। ये डॉक्टर सब्तली के घर की रिवायत थी। माह रमजान में इनके घर आने वाला राशन आधा हो जाता था। घर के दो मुलाजमों के माह रमजान का खर्च इस बाकी के राशन की कीमत से आता था। अमामा, सलार ने फिर इसे खाने की तरफ मुतवज्जा किया। वो खाना खाने लगी। सलार मीठा भी खत्म कर चुका था और अब मुंतजिर था कि वो खाना खत्म कर ले। वो खुद साथ साथ सेल पर मुसलसल मैसेजेस करने में मसरूफ था। वो किसी हद तक बदल गया था, और इसके अंदर आने वाली तब्दीली किसी हद तक डॉक्टर साहब की मरहून मिन्नत थी, और किस हद तक इसकी अपनी सोच की अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो खाना खाते हुए हमेशा इसके खाना शुरू करने का इंतजार करता था। खाना खाते हुए कुछ ना कुछ इसकी प्लेट में जरूर रखता था, और इसके खाना खत्म करने के बाद ही खाने की टेबल से उठता। वो ये बातें नोटिस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो ये नोटिस किए बगैर रह भी नहीं सकती थी। वो अजीब था। अजीब, इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज अमामा के जहन में नहीं आया। वो रात को किचन का सौदा सल्फ खरीदने के लिए गए थे। अमामा ने अगर सलार की ये गुफ्तगू ना सुनी होती तो यकीनन वो किचन के लिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाए बैठी थी, लेकिन इसने खरीदारी करते हुए बहुत एहतियात से काम लिया। खरीदी जाने वाली ज्यादातर अशिया कंटेनर्स और जार्स ही थे। खाना पकाने का सामान इसने बहुत कम खरीदा था। आज उन्होंने एक और जगह से कॉफी पी थी। तुम्हारा वो प्रॉब्लम हल हो गया? अमामा को गाड़ी में अचानक याद आया। कौन सा प्रॉब्लम? सलाह ने चौंक कर इसे देखा। वो जिसकी वजह से तुम कल रात परेशान थे। अमामा ने इसे याद दिलाया। वो बेइख्तियार बड़बड़ाया, काश हो जाता। यानी नहीं हुआ? अमामा मुतफिक्र हुई। हो जाएगा। सलाह ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ इसका चेहरा देखा। परसों मैं कराची जा रहा हूँ। सलार ने बात बदली। कितने दिन के लिए? वो चौंकी। सुबह जाऊंगा और रात को आ जाऊंगा। मैं महीने में 2-3 बार जाता हूँ कराची।
तुम चलोगी साथ? वो हंसा। अमामा ने हैरानी से इसे देखा। एक दिन के लिए? हाँ, तुम ऑफिस के काम से जा रहे हो, मैं क्या करूंगी वहां? तुम अनीता के साथ शॉपिंग के लिए चली जाना, वो तुम्हें घुमा फिराएगी कराची। कभी गई हो वहां पहले? सलार ने इससे पूछा था। नहीं, वो कुछ एक्साइटेड होने लगी थी। समंदर इसे पसंद था, जिंदगी में पहली बार इसे समंदर देखने का मौका मिल रहा था। अनीता से टाई अप करता हूँ प्रोग्राम में, ऑफिस में तुम मेरी बहन के साथ बाजारों में, हम तुम इसी तरह का हनीमून मना सकते हैं फिलहाल। वो इसे फिर छेड़ रहा था। वो हंस पड़ी। वो इससे कह नहीं सकी कि जिस जिंदगी को वो गुजार कर आई थी, इसके मुकाबले में यह आजादी इसे जन्नत जैसी महसूस हो रही थी। ये क्या है? वो खरीदा हुआ सौदा सेल्फ जार्स और कंटेनर्स में डालने में मसरूफ थी जब सलार अपनी स्टडी रूम से एक लिफाफा लेकर किचन एरिया में आया। इसमें तुम्हारी चेक बुक है, सलार ने इसे बताया और लिफाफा काउंटर पर रख कर चला गया। अमामा ने लिफाफा खोलकर अंदर मौजूद चेक बुक निकाली। इसके साथ एक स्लिप भी निकली। वो 30 लाख की थी। अमामा को लगा कि इससे कुछ गलतफहमी हुई। इसने स्लिप को दोबारा देखा, वो वाकई 30 लाख ही की थी। इसने इसके अकाउंट में 30 लाख क्यों जमा करवाए? यकीनन इससे कोई गलती हो गई होगी। वो लिफाफा पकड़ी स्टडी रूम में आ गई। सलार अपने कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा था। सलार, अमामा ने अंदर आते हुए कहा, तुम्हें पता है तुमने कितना ब्लंडर कर दिया है? ब्लेंडर कैसा? वो चौंका। अमामा ने इसके करीब आकर पे स्लिप इसके हाथ सामने की। इसे देखो जरा, ये क्या है? पे स्लिप है। सलार ने एक नजर इस पर डालते हुए दोबारा डेस्कटॉप पर नजर दौड़ाना शुरू कर दी। कितनी रकम जमा करवाई है तुमने मेरे अकाउंट में? 30 लाख। वो हैरान हुई। अभी कुछ रहते हैं 7 लाख, और कुछ चंद माह में वो भी दे दूंगा। वो कुछ टाइप करते हुए सरसरी अंदाज में कह रहा था। लेकिन क्यों दोगे मुझे, किस लिए? वो हैरान थी। तुम्हारा हक मेहर, सलार ने इसी अंदाज में कहा। मेरा हक मेहर 2 लाख रुपए है। अमामा को लगा कि शायद वो भूल गया है। वो आमना का था। मैं तुम्हें ज्यादा हक मेहर देना चाहता हूँ, सलार ने कंधे उचकाकर कहा। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है सलार। वो एकदम संजीदा हो गई। तुमसे किसने कहा मुझे इतनी रकम दो? तुमने खुद मुझे लिख कर दी थी ये रकम। सलार ने इस बार मुस्कुराते हुए मॉनिटर से नजरें हटाकर इसे देखा। मैंने कब? वो कहते कहते रुक गई। वो फिगर तुम इसलिए लिखवा रहे थे? इसे याद आ गया। हाँ, इसकी लापरवाही अब भी बरकरार थी। तुम पागल हो? अमामा को बेइख्तियार हंसी आई। शायद, सलार बेसाख्ता कहा। अच्छा, मैं 1 अरब लिख देती तो क्या करते? वो अब तंज कर रही थी। तो 1 अरब भी दे देता? क्या फयाजी थी। कहाँ से देते? फ्रॉड करते? वो बेसाख्ता नाराज हुई। क्यों करता? कमा कर देता। सलार ने इसकी बात का बुरा माना। सारी उम्र कमाते ही रहते फिर। अच्छा होता सारी उम्र तुम्हारा कर्जदार रहता। वाकई अच्छा होता। तो 1 अरब चाहिए क्या? वो थी कि मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। अमामा को कई साल पहले वाला सलार की झलक नजर आई। क्यों दे रहे हो? इसने संजीदगी से कुछ देर इसे देखकर कहा। बीवी हो तुम, इसलिए। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अमामा, मेरी सेविंग्स है ये, सलार ने बेहद तहम्मुल से कहा। सेविंग्स है तो मुझे क्यों दे रहे हो? वो कुछ खफा हुई। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें दूं। अगर ये पूरी दुनिया मेरी होती तो मैं ये सारी दुनिया तुम्हें दे देता। मैं कमा रहा हूँ और रुपया आ जाएगा मेरे पास। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शाहाना अंदाज था। लेकिन इतनी ज्यादा रकम, सलार ने इसकी बात काटी। मैं इतनी ज्यादा रकम नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मर्जी का हक मेहर देना चाहता था, इसलिए तुमसे एक फिगर लिखने को कहा। तुम्हें पता है जो फिगर तुमने लिखी थी, इस दिन मेरे अकाउंट में एग्जैक्ट इतनी ही अमाउंट थी। वो अब रकम दोहराते हुए हंस रहा था। अब इसको तुम क्या कहोगी, इत्तेफाक? मुझे इत्तेफाक नहीं लगा। मुझे लगा वो रकम मेरे पास तुम्हारी अमानत थी या हक थी, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। 30 लाख दिया है, कुछ रकम का उधार कर लिया है तुमसे, वरना अगले 2-3 माह इधर से उधर मांग रहा होता। इसलिए तुम आराम से रखो ये पैसे। मुझे अगर कभी जरूरत हुई तो तुमसे मांग लूंगा। अब मैं थोड़ा सा काम कर लूं। अमामा ने कुछ नहीं कहा। वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर वो एक बार फिर इसी स्लिप को देखने लगी। वो इस शख्स को कभी नहीं समझ सकती थी, कभी नहीं। वो लाउबाली नहीं था, कम से कम इतने दिन में से ये एहसास नहीं हुआ था।
लेकिन वो समझदार भी नहीं था। कम से कम वो पे स्लिप इसे यही बता रही थी। वो अगर इसे खुश करना चाहता था तो वो नहीं हुई थी। एहसान मंद देखना चाहता था तो हाँ, इसके कंधे पे झुकने लगे थे। ऐसी चाह इसने जिंदगी में किसी और शख्स से चाही थी। ऐसी नवाजिशात की तलब इसे कहीं और से थी। इसके वजूद को गीली लकड़ी वो पैसा नहीं बना रहा था, बल्कि वो फयाजी बना रही थी जो वो दिखा रहा था। वो इससे बराबरी चाह रही थी, बराबर नहीं हो पा रही थी। इस शख्स का कद लंबा नहीं हो रहा था, बल्कि इसका अपना ही वजूद सिकुड़ने लगा था। मामा, हम कल सुबह के बजाय आज शाम को जा रहे हैं। रात कराची में रुकेंगे और फिर कल रात को ही वापस आ जाएंगे। 7 बजे की फ्लाइट है। मैं शाम 5:30 बजे तुम्हें पिक करूंगा। तुम पैकिंग कर लो। इसने 12 बजे के करीब फोन करके ऑफिस से कराची का नया प्रोग्राम बताया था। वो एकदम नर्वस होने लगी। इतनी जल्दी पैकिंग? ठीक है, वो एक रात के लिए जा रहे थे, फिर भी वो इसे अपनी इन कपड़ों के बारे में बता रहा था जो वो साथ लेकर जाना चाहता था। वो पैकिंग करते हुए बेहद बुलाई हुई थी। वो 5:30 बजे वहां मौजूद था। वो जानती थी कि इसने गाड़ी में रोजा अफ्तार कर लिया होगा, लेकिन फिर भी वो एक बॉक्स में इसके लिए खाने की चीजें और जूस लेकर आई थी। एयरपोर्ट तक की ड्राइव में दोनों बातें करते हुए साथ वो चीजें भी खाते रहे। वो 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचे। बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी। वो फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे थे, इसीलिए ट्रैफिक की वजह से कुछ लेट होने के बावजूद सालार मुतमईन था। एग्जेक्टिव लाउंज से जहाज में सवार होते हुए सलार के फर्स्ट क्लास के कुछ और पैसेंजर से सलाम दुआ हुई। चंद एक से इसने अमामा को भी तारुफ करवाया। वो सब कारपोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखते थे या फिर सलार के कस्टमर्स थे। यहाँ के टेक ऑफ के बावजूद चंद मिनटों के बाद किसी दूसरी कंपनी का कोई एग्जेक्टिव सलार से कोई मामला डिस्कस करने के लिए इसके पास आया। चंद लम्हे इससे बातें करने के बाद सलार इससे माजरत करके इस एग्जेक्टिव के साथ इसकी सीट पर चला गया। वो कुछ देर इसके इंतजार में बैठी रही, फिर कुछ बोर होकर इसने एक मैगजीन उठा लिया। सलार की वापसी लैंडिंग के ऐलान के 5 मिनट बाद हुई। वो सॉरी कहता हुआ इसके पास बैठकर सीट बेल्ट बांधने लगा। तुम बोर तो नहीं हुई? नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, इसने बेहद खफगी से जवाब दिया। इसने मैगजीन से नजरें नहीं हटाई। सलार ने बड़े आराम से इसके हाथ से मैगजीन लेकर पास से गुजरती हुई एयर होस्टेस को थमा दिया। वो शुक्रिया अदा करती हुई चली गई। ये बदतमीजी है, अमामा ने इसके जाने के बाद कुछ दबी हुई आवाज में एहतजाज किया। हाँ है तो सही, लेकिन तुम मुझे देख नहीं रही थी, इसने इत्मीनान और ढिठाई के साथ कहा। अमामा की समझ में नहीं आया वो इससे खफा हो या हंसे। जितनी बातें तुम इन लोगों से कर रहे थे तुमने मुझसे कभी नहीं की। वो इसके शिकवे पर हंसा। बैंक के कस्टमर्स हैं, ये इन बातों के पैसे देते हैं। इसने कुछ मलामत भरी नजरों से सलार को देखा। कितने मटेरियलिस्टिक हो ना तुम। हाँ वो तो हूँ, इसने आराम से जवाब दिया। मैं भी दे सकती हूँ तुम्हें पैसे। वो इसके जुमले पर चौंका। अरे मैं तो भूल ही गया था, फिलहाल तो तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो, मेरे बैंक के कस्टमर्स भी हो, और फिर मैं तुम्हारा कर्जदार भी हूँ, तो तुमसे बातें करना तो फर्ज है मेरा। वो मुस्कुराते हुए बोला। बैंकर्स? वो कुछ कहने लगी थी। सलार बे इख्तियार अपना हाथ इसके होंठों पर रखते हुए इसे रोका और कहा, मैं अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाहता मामा। तुमसे वापसी पर सुनूंगा कि बैंकर्स कैसे होते हैं। इसने एकदम संजीदा होते हुए कहा। अम्मा ने हैरानी से इसे देखा। इसमें संजीदा होने वाली क्या बात थी? इसने सोचा। एयरपोर्ट पर होटल की गाड़ी ने इन्हें पिक किया था। मैंने सोचा था कि हम अनीता के घर पर ठहरेंगे। अम्मा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। मैं कभी अनीता के घर नहीं ठहरा, मैं होटल में रहता हूँ, सलाह ने इसे बताया। कराची अक्सर आता जाता हूँ मैं, वो खिड़की से बाहर देखते हुए इससे कह रहा था। बाज दफा तो यहाँ आकर अनीता से बात तक नहीं हो पाती। अमामा ने इसका चेहरा देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो मुसलसल सेल पर कुछ मैसेजेस करने में मसरूफ था। वो साथ साथ इसे सड़क के दोनों अतराफ आने वाले इलाकों के बारे में भी बता रहा था। फिर मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से। सलार ने इसके अचानक इस तरह कहने पर इसे टोका। तुम्हें साथ लेकर आना मुझे अच्छा लग रहा है, और तुम्हें अनीता की फैमिली से मिलवाने के लिए यहाँ लेकर तो आना ही था मुझे। अमामा ने इसका चेहरा गौर से पढ़ने की कोशिश की। सच कह रहा हूँ, इसने अमामा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तुम्हें मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा? सलार ने यकदम इससे पूछा। वो मुस्कुरा दी। आप अपनी वाइफ के साथ पहली बार यहाँ ठहर रहे हैं? होटल में चेक इन करते हुए रिसेप्शन पर मौजूद लड़के ने मुस्कुराते हुए सलार से कहा।
इस 5 स्टार होटल के चंद कमरे मुस्तकिल तौर पर सालार के बैंक ने बुक किए हुए थे और इन कमरों में बाकायदगी से ठहरने वालों में से एक वो भी था। लेकिन आज वो पहली बार इसकी बीवी को देख रहे थे। सलार ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और साइन करने लगा। वो लड़का अब अमूमा से कुछ खुशगवार जुमलों का तबादला कर रहा था, जिससे कोई आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द मौजूद सारी सलाखें गिरा रहा हो। वो बाहर की इस दुनिया से मशहूर हो रही थी, जिससे वो सलार की वजह से मुतारिफ हुई थी। बीच लग्जरी में अनीता और इसकी फैमिली ने इसके लिए डिनर अरेंज कर रखा था। वो लोग आधे घंटे में तैयार होने के बाद तकरीबन 11:30 बजे वहां पहुंचे। अनीता और इसके शौहर के अलावा इसके ससुराल के भी कुछ और लोग वहां मौजूद थे। ये सलार और उसकी बीवी के लिए एक फैमिली डिनर था। इसका इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी से किया गया। इसकी घबराहट इब्तदाई चंद मिनटों के बाद खत्म होना शुरू हो गई। वो काफी लिबरल फैमिली थी और इन दोनों की शादी के हवाले से होने वाली रस्मी गुफ्तगू के बाद गुफ्तगू के मौजुआत बदल गए थे। अमामा चीफ गेस्ट थी, लेकिन वहां किसी ने इसे टेलीस्कोप के नीचे नहीं रखा था और इस चीज ने अमामा के एतमाद में इजाफा किया था। खाना अभी सर्व नहीं हुआ था। वो ड्रिंक्स लेते हुए गपशप कर रहे थे। अमामा गुफ्तगू में एक मुस्कुराते हुए खामोश सामने करोल अदा कर रही थी। इसकी ज्यादा तवज्जो बीच लग्जरी व्यू के गिर्द नजर आने वाले समंदर और इसकी रोशनियों पर थी। वो लोग ओपन एयर में थे। कराची में लाहौर जैसी सर्दी नहीं थी, लेकिन यहाँ इसे सर्दी महसूस हो रही थी। सलार ने आने से पहले इसे गर्म शॉल लेने का ना कहा होता तो यकीनन इस वक्त इसके दांत बज रहे होते। वहां मौजूद तमाम खवातीन स्वेटर्स के बजाय इसी तरह की शॉलें अपने कंधों पर डाले हुए थी। सलार में वहां आगे जाकर नीचे समंदर दिखना चाहती हूँ। इसने साथ बैठी हुई सलार की तरफ झुकते हुए मध्यम आवाज में सरगोशी की। तो जाओ, सलार ने इत्मीनान से कहा। मैं कैसे जाऊं इस तरह अकेले? तुम साथ आओ मेरे। इसने इसके मशवरे पर जज्बज होते हुए कहा। नहीं, तुम खुद जाओ, देखो और भी लोग खड़े हैं, तुम भी जाकर दिखाओ, सलार ने इससे कहा। वो अब इसकी गोद में पड़ा बैग उठाकर नीचे जमीन पर रखते हुए बुलंद आवाज में इससे कह रहा था। अमामा ने कुछ झिझकते हुए इस लंबी टेबल के गिर्द मौजूद अफराद पर नजर डाली। वो सब गुफ्तगू में मसरूफ थे। इनमें से कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो कुछ हिम्मत पाते हुए उठ खड़ी हुई। इसकी बाएं तरफ बैठी अनीता इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। वहां से जाकर देखो, वहां से ज्यादा अच्छा व्यू है। अनीता ने इशारे से इसे गाइड किया। अमामा ने सर हिलाया। वहां इस वक्त इसके अलावा और भी कुछ फैमिलीज मौजूद थीं और सालार ठीक कह रहा था, कोई ना कोई वक्तन फवक्तन उठकर इसी तरह इस अर्शनुमा जगह के किनारे खड़े होकर समंदर को देखने लगता। वो अपनी जगह से उठते हुए नर्वस थी, लेकिन फिर वो नॉर्मल होना शुरू हो गई। सलार वहीं बैठा कोल्ड ड्रिंक पीते इसे जाते हुए देखता रहा। अमामा ने दोबारा पलटकर कुछ नर्वस होकर इसे देखा। वो दोनों बार मुस्कुरा दिया। ये 9 साल पहले की वो पुरइत्माद लड़की नहीं थी जो आधी रात को अपने घर की दीवार कूद कर इसके कमरे में आ गई थी। इससे शादी की थी, फिर घर से चली गई थी। वो वसीम की इस बहन के बारे में वसीम से बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन पिछले 10 दिनों से वो जिस लड़की को देख रहा था, ये वो लड़की नहीं थी। वक्त ने जितनी तोड़फोड़ इसकी जिंदगी में पैदा की थी, इससे ज्यादा तोड़फोड़ इसने अरशे की तरफ जाती हुई इस लड़की की जिंदगी में पैदा की थी। इसके अंदाज और इतवार ही तब्दील हो गए थे। 9 साल अगर किसी शख्स को इसके घर वालों से अलग कर दिया जाए, खौफ और दबाव के साथ चंद जगहों तक महदूद करके बाकी दुनिया से काट दिया जाए, तो वो किस हद तक कंफ्यूज, डबल माइंडेड, गैर महसूस और डिपेंडेंट हो सकता है। वो इसका अमली मुजाहरा अमामा की हालत देख रहा था और ये चीज इसे काफी तकलीफ पहुंचा रही थी। वो कम से कम इसे इस हालत में देखना नहीं चाहता था। सलार सलार, वो अनीता की आवाज पर बेख्तियार चौंका। इसने पूरी कुव्वत से इसके कंधे पर हाथ मारा था। या तो इसे वहां भेज देना, अब भेज दिया है तो 2-4 मिनटों के लिए किसी और चीज को भी देख लो। वो अब इसे डांट रही थी। वो मुस्कुराकर सीधा हो गया। इसका बहनोई गुफरान इससे कुछ पूछ रहा था। हवा अमामा के बालों को बखेर रही थी। वो इन्हें बार बार कानों के पीछे करके संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्हें खुला छोड़कर इन्हें पर आने पर पछता भी रही थी। इस तेज हवा में वो शिफॉन के दुपट्टे को सर पर टिकाने की कोशिश छोड़ चुकी थी। हाँ, वो पश्मीना शॉल इसकी महीन शिफॉन की कमीज को उड़ने से तो रोक नहीं पा रही थी, लेकिन इसके जिस्म को अच्छी तरह ढांपे रखने में मौसर थी। वो कई सालों में आज पहली बार किसी पब्लिक प्लेस पर सर ढांपे बगैर खड़ी थी। इसे बेहद अजीब लग रहा था। अगर वो सलार के साथ ना होती तो कभी भी ऐसी हालत में किसी खुली जगह पर खड़े होने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। 10 दिन पहले तक वो घर से बाहर निकलते हुए अपना चेहरा भी छुपाती थी। वो वाहिद गेटअप था जिसमें वो खुद को बेहद महफूज
समझती थी। सलार से शादी के बाद इसने चेहरा छुपाना छोड़ दिया था और अब इसके साथ खुद को महफूज समझती थी। तारीख समंदर में नजर आती रोशनियों के अक्स को देखते हुए इसने एक बार फिर गर्दन के गिर्द लिपटे दुपट्टे को सर पर लेने की कोशिश की। यहाँ इसकी कोशिश को नोटिस करने वाला कोई नहीं था। ये काम इस हवा में शाल दुपट्टे और खुले बालों के साथ आसान नहीं था। मैं बाल समेट दूं तुम्हारे? वो जैसे करण खाकर पलटी, फिर जैसे इत्मीनान का सांस लिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, इसने सालार को अपने उकुब में देखकर बेइख्तियार कहा। वो किस वक्त आया था इसे पता ही नहीं चला। तुम मेरा दुपट्टा पकड़ोगे? इसने सालार की ओंठ में आते हुए अपना दुपट्टा इसे पकड़ा दिया। वो अब वहां खड़ी दूसरों को नजर नहीं आ रही थी। तुम्हें मुझको बताना चाहिए था कि यहाँ इतनी तेज हवा होगी। मैं बाल तो खुले छोड़कर ना आती। वो अपने बालों को ढीले जूड़े की शक्ल में लपेटते हुए इससे शिकायती अंदाज में कह रही थी। वो इसका चेहरा देखता रहा। वो अब अपनी शॉल उतारकर इसे देते हुए दुपट्टा इससे ले रही थी। ये कौन सा कलर है? वो दुपट्टे को अपने सर और गर्दन के गिर्द लपेटते हुए इसके सवाल पर ठटकी। क्रिम्जन। क्यों? सलान ने शॉल इसके कंधों के गिर्द लपेटते हुए कहा। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम इस कलर में बहुत अच्छी लगती हो। इसने इसके बाएं गाल को अपनी उंगलियों को पूरों से बहुत आहिस्ता से छुआ था। अमामा की आंखों में हैरत उमड़ आई। अगले लम्हे सलार को यह तय करना मुश्किल हो गया था कि इसका लिबास ज्यादा प्रेमजी था या इसका चेहरा। वो बेइख्तियार गहरा सांस लेकर रह गया। अब तुम इतनी सी बात पर भी ब्लश करोगी तो मामला जानलेवा हो जाएगा। मार दोगी तुम बड़ी जल्दी मुझे। वो खिलखिलाकर हंसी। वो तकरीबन 2:30 बजे वापस अपने होटल में आए थे। अमामा को इतनी नींद आ रही थी कि इसने ज्वेलरी उतार दी, चेहरा भी धो लिया, लेकिन कपड़े तब्दील किए बगैर ही सो गई थी। सलार सुबह कब ऑफिस के लिए निकला अमामा को पता ही नहीं चला। वो तकरीबन 10 बजे उठी थी। जब तक वो अपने सामान पैक करके तैयार हुई तब तक अनीता इसे लेने के लिए आ चुकी थी। वो लोग तकरीबन 11:30 बजे होटल से चेक आउट करके निकले। इसके बाद वो अनीता के साथ कराची के मुख्तलिफ मॉल्स में घूमती फिरती रही। अनीता ने इसे सलार के दिए हुए क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने ही नहीं दिया। इस दिन वही इसको शॉपिंग करवाती रही। शॉपिंग के बाद अनीता इसे अपने घर ले गई। इसने वहां अफ्तार किया। 7:30 बजे वो घर से एयरपोर्ट के लिए निकली और इसी वक्त सलार से इसकी फोन पर बात हुई। वो भी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। वो सलार की निस्बत जल्दी एयरपोर्ट पहुंची। बोर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। एग्जेक्टिव लॉन्च में पहुंचते ही एक बार फिर वो किसी न किसी हेलो हाय करने लगा। वो फ्लाइट थी जिससे वो आमतौर पर कराची से वापस आया करता था और इसकी तरह बाकी लोग भी रेगुलर ट्रेवलर थे। लेकिन वो इस वक्त इतनी खुश थी कि इसने सलार की तवज्जो किसी और तरफ होने पर भी एतराज नहीं किया। वो खुश थी, ये इसके चेहरे पर लिखा था, और सलार को इसकी ये खुशी हैरान कर रही थी। ये तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और पैसे। इसने लाउंज में बैठने के कुछ देर बाद ही अपने बैग से दोनों चीजें निकाल कर सलार को थमा दी। अनीता ने मुझे बिल पे करने ही नहीं दिए। इसने सारे बिल्स दिए हैं, तुम इसे पे कर देना, अमामा ने इसे बताया। क्यों? कोई बात नहीं, अगर इसने पे किए हैं इसे ही करने चाहिए थे, सलार ने क्रेडिट कार्ड अपने वॉलेट में रखते हुए कहा। हाथ में पकड़े हुए पैसे इसने वापस अमामा के बैग में डाल दिए थे। लेकिन हमने तो इसे या इसकी फैमिली को कुछ भी। सलार ने इसकी बात काटी। तुम नेक्स्ट टाइम आओगी तो ले आना कुछ इसके लिए। 2-4 हफ्ते तक वो वैसे भी अपने नए घर में शिफ्ट हो रही है। तो तुम्हें अच्छा लगा कराची आकर? सलार ने मौजू बदला। अमामा का चेहरा एक बार फिर से चमकने लगा। वो इसे इन जगहों के बारे में बता रही थी जहां वो अनीता के साथ गई थी। सलार मुस्कुराते हुए इसे सुनता रहा। वो बच्चों जैसी जोशो खरोश के साथ अपनी शॉपिंग की तफसील बता रही थी। मैंने अब्बू, आंटी और सईदा अम्मा के लिए भी कुछ गिफ्ट लिए हैं, वो बता रही थी। अच्छा, सलार ने दिलचस्पी ली लेकिन गिफ्ट्स की नौयत नहीं पूछी। फुरकान भाई की फैमिली और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी। अमामा, सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं हैं वो, तुम्हारा भी कोई रिश्ता है इनसे? सलार ने एतराज किया। वो अब भी इसके माँ बाप का जिक्र इसी तरह करती थी। इस वक्त यकदम अमामा को एहसास हुआ कि इसने सलार के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। ये भूल थी या लापरवाही, लेकिन इसे शॉपिंग के दौरान सलार का ख्याल तक नहीं आया। इससे बेहद नदामत हुई। क्या हुआ? सलार ने इसे खामोश देखकर पूछा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर इसने कुछ शर्मिंदगी से कहा, सलार, मुझे तुम्हारे लिए कुछ खरीदना याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुमने अपने लिए शॉपिंग की है तो समझो तुमने मेरे लिए ही खरीदा है।
सलार ने इसी मुस्कुराहट के साथ इसका कंधा थपक कर जैसे तसल्ली दी। फिर भी मुझे तुम्हारे लिए कुछ लेना चाहिए था। अम्मा मुतमईन नहीं हुई, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। इसका महबूब जालिम था, वो जानता था। कोई बात नहीं, जब ख्याल नहीं आया तो कैसा तोहफा। तोहफा तो इनको दिया जाता है जिनका ख्याल आता हो। सलार के लहजे में गिला नहीं था, लेकिन अमामा को गिला लगा। वो नादिम सी होकर खामोश बैठ गई। और क्या क्या लिया, इसकी नदामत महसूस करते हुए सलार ने दोबारा इससे बात शुरू की। मुझे अनीता अच्छी लगी। अमामा ने इसका सवाल नजरअंदाज किया। चलो अच्छा है, कोई तो अच्छा लगा तुम्हें, मैं ना सही मेरी बहन ही सही। इस्लामाबाद जाना जरूरी है। वो जुम्मे की रात एक बार फिर सोच में पड़ गई। ऐसा नहीं था कि वो वहां जाना नहीं चाहती थी, वो जाना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो एक अजीब से खौफ का शिकार भी थी। बहुत ज्यादा जरूरी है। सलार बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर ईमेल चेक करने में मसरूफ था। तुम्हें क्या काम है वहां? मामा ने हाथ में पकड़ा नॉवेल बंद करते हुए कहा। वो कोहनी के बेल टेक लगाए इसकी करवट लेते हुए इसे देखने लगी। मुझे गांव जाना है, वो स्क्रीन पर नजरें जमाए अपना काम करते हुए बोला। कौन सी गांव? वो चौकी, इस्लामाबाद से 2 घंटे की ड्राइव पर है, इसने नाम बताते हुए कहा। मैं वहाँ एक स्कूल और चंद दूसरे प्रोजेक्ट्स चला रहा हूँ। स्कूल की बिल्डिंग में कुछ एक्सटेंशन हो रही हैं, इसी को देखने जाना है मुझे। जाना तो लास्ट वीक था, लेकिन जा नहीं सका। वो उलझी नजरों से इसे देखती रही। इसकी तवील खामोशी और खुद पर जमी नजरों को महसूस करते हुए सलार ने इसे देखा। अमामा से नजरें मिलने पर इसने कहा, तुम साथ चलना और देख लेना। वो दोबारा स्क्रीन देखने लगा। तुम अकेले चले जाओ। अमामा ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। इसने इसरार किया। वैसे भी पापा ने कहा है आने के लिए। हाँ, अगर तुम गांव नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, लेकिन इस्लामाबाद तो चलना है तुम्हें, सलार ने जिसे कतई अंदाज में कहा। अमामा ने दोबारा तकिए पर सर रखते हुए कुछ खफगी के आलम में नावल खोल दिया। क्या स्टोरी है इस नॉवेल की? सलार को इसके बिगड़ते हुए मूड का अंदाजा हो रहा था। अमामा ने जवाब नहीं दिया। हीरो हीरोइन के कपड़ों की ज्यादा तारीफ करता है इसमें, या खूबसूरती की? वो इसे छेड़ रहा था। अमामा ने इसे नजरअंदाज किया। ये इत्तेफाक था कि जो सफा वो पढ़ रही थी, इसमें हीरो हीरोइन की खूबसूरती ही की तारीफ कर रहा था। अमामा को हंसी आ गई। नॉवेल से अपना चेहरा छुपाते हुए इसने दूसरी तरफ करवट ली। वो नहीं चाहती थी कि वो इसके तासुरात देखे। सलार ने इसे हंसते हुए नहीं देखा, वो अपने काम में मसरूफ था। ख्वातीनो हजरात, तवज्जो फरमाइए, हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। इस वक्त यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ का दर्जा हरारत। जहाज के केबिन अमले में से कोई इंग्लिश के बाद अब उर्दू में रस्मी अलविदाई कलमात दोहरा रहा था। जहाज टैक्सी करते हुए टर्मिनल के सामने जा रहा था। बिजनेस क्लास की एक सीट पर बैठे सलार ने अपना सेल फोन ऑन करते हुए अपनी सेफ्टी बेल्ट खोली। अमामा खिड़की से बाहर देखते हुए गुमसुम थी। कहाँ गुम हो? इसने अमामा का कंधा थपका। जैसे चौंक कर इसे देखा, फिर अपनी सेफ्टी बेल्ट खोलने लगी। सलार अब लगेज कंपार्टमेंट से अपने बैग्स निकाल रहा था। एक फ्लाइट स्टीवर्ड ने इसकी मदद की। दोनों के दरमियान चंद खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ और इस फ्लाइट पर आने वाले रेगुलर पैसेंजर में से एक था और फ्लाइट का अमला इसे पहचानता था। जहाज की सीढ़ियों की तरफ जाते से पहले सलार ने मुड़कर इसे कहा, तुम्हें कोई कोट वगैरह लेकर आना चाहिए था, स्वेटर में सर्दी लगेगी तुम्हें। ये तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी शहर है। मैं पैदा हुई हूँ यहाँ, 20 साल गुजारे हैं मैंने यहाँ, मुझे पता है कितनी सर्दी होती है। ये स्वेटर काफी है, मामा ने बड़े जताने वाले अंदाज में इससे कहा। वो इस्तेसाइया अंदाज में मुस्कुराया। जहाज की सीढ़ियों से बाहर आते ही सर्द हवा के पहले झोंके ने ही इसे एहसास दिला दिया कि वो ठीक कह रहा था। इसे अपने दांत बजते हुए महसूस हुए। सलार ने कुछ कहे बगैर अपने बाजू पर पड़ी जैकेट इसकी तरफ बढ़ाई। इसने बुरी फर्माबरदारी से कुछ नादिम होकर जैकेट पहन ली। इस्लामाबाद बदल गया था, इसने खजिल होकर सोचा। अराइवल लाउंज की एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए सलार चंद लम्हों के लिए ठटका। एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया मामा, इसने बड़ी मासूमियत से कहा। क्या बात है? वो मुस्कुराई। बाबा को पता नहीं है कि हम आज इस्लामाबाद आ रहे हैं। मामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सलार ने इसे रुकते देखा तो वो भी रुक गया। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। सलार ने अपने कंधे पर इसके बैग के बेल्ट ठीक की। शायद टाइमिंग गलत हो गई, टैक्सी में बताना ज्यादा बेहतर था। और अब अगर इसने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया तो
वो दिल ही दिल में फिक्रमंद हुआ। वो पल के झपके बगैर इसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। वो भी इसी तरह देखता रहा। ये ढिठाई थी, लेकिन अब वो इसके अलावा कर भी क्या सकता था। इसने बिलाखिर अमामा की आंखों की बेयकीनी को गुस्से में बदलते देखा। फिर इसका चेहरा सुर्ख होने लगा। वो मुसलसल 2 हफ्तों से इसे सिकंदर उस्मान के इस्लामाबाद बुलाने का कह रहा था। ये सिकंदर उस्मान का बुलावा ना होता तो वो सिर्फ सालार के कहने पर तो कभी वहां ना जाती, और अब वो कह रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। सिकंदर उस्मान के ना बुलाने के बावजूद वहां जाने का क्या मतलब था, इसका अंदाजा वो कर सकती थी, और इस वक्त वो बुरी तरह परेशान हुई थी। एक लम्हे के लिए तो इसका दिल चाहा कि वो लाउंज से बाहर निकलने से ही इनकार कर दे। इसे सलार पर शदीद गुस्सा आ रहा था। सॉरी, सलार ने इत्मीनान से कहा। वो चंद लम्हे मजीद इसे देखती रही, फिर इसने इर्द गिर्द देखा। फिर सलार ने इसे जैकेट उतारते हुए देखा। वो वहां खड़ी बेबसी के आलम में इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। सलार को अंदाजा था कि वो यही कर सकती है। इसने जो जैकेट उतार कर तकरीबन फेंकने वाले अंदाज में सलार को दी। थैंक यू, सलार ने जैकेट संभालते हुए कहा। इसने शुक्र अदा किया कि जैकेट इसने इसके मुंह पर नहीं दे मारी। वो अब बेहद गुस्से में एग्जिट डोर की जानिब जा रही थी। सलार को हैरत हुई, इसने इससे अपना बैग क्यों नहीं लिया था। उसूली तौर पर इसका दूसरा रद्द अमल यही होना चाहिए था। मेरा बैग दो। एग्जिट डोर से निकलने से पहले ही अमामा ने पलटकर तकरीबन घुर्राते हुए इससे कहा था। सलार ने आराम से बैग इसे पकड़ा दिया। टैक्सी में बैठने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो पूरा रास्ता खिड़की से बाहर देखती रही। सलार ने भी इसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की। इस वक्त गुस्से को ठंडा करने के लिए इसे मुखातिब ना करना मुनासिब था। वो अब घर पर सिकंदर उस्मान और तैयबा के रद्द अमल के बारे में सोच रहा था। अगली बिजली इन पर गिरने वाली थी। गाड़ी इनके घर के हाई रोड का मोड़ मोड़ रही थी। अम्मा को अपना पूरा जिस्म सर्द होता हुआ महसूस हुआ। ये सर्दी नहीं थी, ये खौफ भी नहीं था, ये कुछ और था। वो 9 साल के बाद अपने घर को, इस सड़क को और इस मोड़ को देख रही थी। इसके होंठ कपकपाने लगे थे, आंखें भीगने लगी थी। सलाह से नाराजी, सारा गुस्सा जिसे धुआं बनकर हवा में तहलील हो रहा था। खुशी थी क्या थी जो वो गाड़ी को अपने घर की तरफ बढ़ते देखकर महसूस कर रही थी। इसके घर का गेट सलार के घर के गेट से कुछ फासले पर था, और वो सिर्फ ये अंदाजा कर पाई थी कि गेट बंद था, घर की बैरूनी लाइट्स ऑन थी। गाड़ी के हॉर्न पर गार्ड ने बाहर देखा, फिर इसने गार्ड रूम से बाहर निकलकर गेट खोल दिया। सलार तब तक इसके साथ गाड़ी से निकलकर डिग्गी के से बैग्स निकाल रहा था। अमामा ने इस बार अपना बैग खुद थामने पर इसरार नहीं किया था। गार्ड ने सामान लेने की कोशिश नहीं की। सलार अपना सामान खुद उठाने का आदी था, लेकिन इसने सलार के साथ आने वाली इस लड़की को बड़ी हैरत और दिलचस्पी से देखा था, जो गेट से घर के अंदर आने तक इन हमसायों के घर को दीवाना वार देखती आ रही थी, जिनके साथ सिकंदर उस्मान का मेल मिलाप बंद था। धुंध के बावजूद अमामा ने घर की बलाई मंजिल के कुछ बेडरूम्स की खिड़कियों से आती रोशनी को देख लिया था। इसके अपने बेडरूम में भी रोशनी थी। अब वहां कोई और रहता होगा, वसीम या साद या इसका कोई भतीजा या भतीजी। इसने आंखों में उमड़ते सैलाब को साफ करते हुए इन खिड़कियों में जैसे किसी साए किसी हैबले को ढूंढने की सही की थी। अंदर चले, इसने अपने बाजू पर इसके हाथ की नर्म गिफ्ट महसूस की। अमामा ने आंखें रगड़ते हुए सर हिलाया और कदम आगे बढ़ा दिए। वो जानता था कि वो रो रही है, लेकिन इसने इसे रोने से रोका नहीं था। इसने बस इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया था। सिकंदर उस्मान इस वक्त लाउंज में फोन पर किसी दोस्त के साथ खुशगपियों में मसरूफ थे। तैयबा का इंतजार कर रहे थे, जो अपने बेडरूम में कोई चीज लेने के लिए गई थी। अगर सिकंदर को ऑफिस से आने में देर ना हो गई होती तो वो दोनों इस वक्त किसी अफ्तार डिनर में जा चुके होते। लाउंज में सलार और मामा का सामना इनसे पहले ही हुआ। किसी भूत को देखकर सिकंदर उस्मान का वो हाल ना होता जो इस वक्त इन दोनों को देखकर इनका हुआ था। वो फोन पर बात करना भूल गए थे। जब्बार, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, उन्होंने खड़े होते हुए अपने दोस्त से कहा और सेल बंद कर दिया। गुस्सा बेहद मामूली लफ्ज था जो उन्होंने इस वक्त सलार के लिए महसूस किया। वो लाहौर में इस उल्लू के पट्टे को न सिर्फ इस्लामाबाद अमामा के साथ न आने की ताकीद करके आए थे, बल्कि पिछले कई दिनों से मुसलसल फोन पर हर बात बात करने के दौरान ये बात दोहराना नहीं भूले।
और वो हर बार बड़ी फर्माबरदारी से ओके कहता रहा। न ये फर्माबरदारी इनसे हजम हुई थी, न इतना सीधा ओके। इनकी छठी हिस्स इसके बारे में सिग्नल दे रही थी। वो पिछले कई सालों में बहुत बदल गया था, बेहद फर्माबरदार हो गया था। इसके सामने सर झुकाए बैठा रहता था, बहुत कम इनकी किसी बात से इख्तिलाफ करता या एतराज करता। लेकिन वो सालार सिकंदर था, इनकी वो चौथी औलाद, जिसके बारे में वो सोते में भी मोहतात रहते थे। सिर्फ सालार ही नहीं, बल्कि अमामा ने भी सिकंदर उस्मान के चेहरे के बदलते हुए तासुरात को दूर ही से भांप लिया था। डोंट वरी, पापा मुझे कुछ जलील करेंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। दूर से अपनी तरफ आते सिकंदर की तरफ जाते हुए वो खुद इसे चंद कदम पीछे चलती अमामा की तरफ देखे बगैर बेहद मध्यम आवाज में बड़बड़ाया था। अमामा ने सर उठाकर अपने शोहर का इत्मीनान देखा, फिर तकरीबन 10 मीटर के फासले पर आते अपने ससुर का अंदाज। फौरी तौर पर इसकी समझ में नहीं आया कि इसे इस वक्त क्या करना चाहिए। वो ये सोचकर ज्यादा खौफ ज्यादा हुई थी कि सिकंदर उस्मान सलार की इंसल्ट करने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम पापा। अपने हाथ में पकड़े बैग्स रखते हुए इसने पास आते हुए सिकंदर उस्मान से हमेशा की तरह यूं गले मिलने की कोशिश की जैसे वो इनकी दावत और हिदायत पर वहां आया है। सिकंदर उस्मान ने खश्मगी नजरों से इसे देखते हुए इसका हाथ पीछे करते हुए कहा, तुम्हें मना किया था ना? जी। सलार ने बेहद ताबेदारी से इस सवाल का जवाब दिया। सिकंदर उस्मान का दिल चाहा कि वो इसका गला दबा दे। कैसे आए हो? चंद लम्हों के बाद उन्होंने इससे अगला सवाल किया। टैक्सी पर। जवाब खटाक से आया था। टैक्सी अंदर लाए थे? नहीं, गेट पर ही उतरे हैं। वो नजरें झुकाए बेहद सादत मंदी से कह रहा था। तो ससुराल वालों को भी सलाम कराते। वो इस बार चुप रहा, जानता था ना ये सवाल है ना मशवरा। बेटा आप कैसी हैं? इसे कहर आलूद नजरों से घूरते हुए वो अब अमामा की तरफ बढ़ आए थे। इनका लहजा अब बदल गया था। वो बुरी तरह घबराई हुई बाप बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन रही थी और सिकंदर को अपनी तरफ बढ़ते देखकर इसका रंग फक हो गया था। वो सिकंदर के सवाल का फौरी तौर पर जवाब नहीं दे सकी। सफर ठीक रहा? उन्होंने इसे अपने साथ लगाते हुए बेहद शफकत से पूछ रहा था। और तबीयत ठीक है? चेहरा क्यों इतना सुर्ख हो रहा है? सिकंदर ने भी इसकी आंखों की नमी और परेशानी को महसूस किया था। जी जी वो अटकी। सर्दी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? सलाह ने बेग दोबारा खींचते हुए पहला जुमला सिकंदर से कहा और दूसरा दूर से आती हुई तैयबा को देखकर, जो इसे देखकर जैसे कराही थी। सलार, क्या जरूरत थी यहाँ आने की? कुछ तो एहसास किया करो। वो अब इनसे गले मिल रहा था। तैयबा, अमामा को चाय के साथ कोई मेडिसिन दें और अब इसको डिनर को रहने ही दें। सिकंदर इसे साथ लाते हुए अब तैयबा से कह रहा था। तैयबा अब सलार को एक तरफ करते हुए इसकी तरफ बढ़ आई। क्या हुआ अमामा को? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, इसने मुदाफियाना अंदाज में तैयबा से मिलते हुए कहा। आप लोग डिनर पर जाएं, हमारी परवाह ना करें, हम लोग खा लेंगे जो भी घर में है। सलार ने सिकंदर से कहा। इसे अंदाजा था कि वो इस वक्त कहीं इनवाइटेड हैं। यकीनन घर में इस वक्त डिनर की कोई तैयारी नहीं की गई होगी। सिकंदर ने इसकी बात सुनने की जहमत नहीं की। उन्होंने पहले इंटरकॉम पर गार्ड्स को सिक्योरिटी के हवाले से कुछ हिदायत की। इसके बाद ड्राइवर को किसी करीबी रेस्टोरेंट से खाने की कुछ डिशेस लगवाई और खानसामा को चाय के लिए बुलवाया। प्लीज पापा, आप हमारी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल ना करें, आप जाएं। सलार सिकंदर ने उस्मान से कहा, ताकि तुम पीछे से हमारे लिए कोई और मुसीबत खड़ी कर दो। वो सिकंदर के जुमले पर हंस पड़ा और इसकी हंसी ने सिकंदर को कुछ और बरहम किया। अमामा अगर इसके पास ना बेटी होती तो सिकंदर उस्मान इस वक्त इसकी तबीयत अच्छी तरह साफ कर देते। जब मैंने तुम दोनों से कहा था कि फिलहाल यहाँ मत आना, फिर अमामा कम से कम तुम्हें इसे समझाना चाहिए था। सिकंदर ने इस बार अमामा से कहा था, जो पहले ही बेहद शर्मिंदगी और हवास बाख्तगी का शिकार हो रही थी। पापा, अमामा ने तो मुझे मना कर रही थी, मैं जबरदस्ती लाया हूँ इसे। अमामा की किसी वजाहत से पहले ही सलार ने कहा। सिकंदर की बेहद खशमगी नजरों ने इसे देखा। इनकी औलाद में से किसी ने आज इनके मुंह पर बैठकर इतने फखरी अंदाज में इनकी बात ना मानने का ऐलान नहीं किया था। सलार ने मजीद कुछ कहने के बजाय उन्होंने मुलाजिम से सामान इनके कमरे में रखने के लिए कहा। इस सारे मामले पर सलार से संजीदगी से बात करना जरूरी था, लेकिन अकेले में।
सलार के कमरे में आते ही अमामा मकनातीस की तरह खिड़की की तरफ गई थी और फिर जैसे शहरज़ादा खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। वहां से इसके घर का बायां हिस्सा नजर आ रहा था। इसके घर का ऊपर वाला हिस्सा, इसके कमरे की खिड़कियां, वसीम के कमरे की खिड़कियां, दोनों कमरों में रोशनी थी, लेकिन दोनों खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे। कोई इन पर्दों को हटाकर इस वक्त इसकी तरह आकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता तो इसे आराम से देख लेता। पता नहीं पहचानता भी या नहीं। वो इतनी तो नहीं बदली थी कि कोई इसे पहचान ही नहीं पाता। इसके अपने खूनी रिश्ते तो पानी के सैलाब के रेले की तरह बन तोड़कर इसके आंखों से बहने लगे। ये कब सोचा था इसने कि कभी अपनी जिंदगी में वो दोबारा इस घर को देख सकेगी? क्या जरूरी था कि ये सब कुछ इसकी जिंदगी में इसके साथ होता? वो बेहद खामोशी के साथ इसके बराबर में आकर खड़ा हो गया था। इसने खिड़की आने वाले इस घर को देखा और फिर अमामा की आंखों से बहने वाले पानी को। इसी खामोशी के साथ इसने अमामा के कंधे पर अपना बाजू फैलाते हुए जैसे इसे दिलासा देने के लिए इसके सर को चूमा। वो मेरा कमरा है, बहते आंसुओं के साथ अमामा ने इसे बताया। जहां से तुम मुझे देखा करती थी ना? वो बहते आंसुओं के बीच हंस पड़ी। मैं तुम्हें नहीं देखती थी सलार, इसने एहतजाज किया था। सलार ने इसके कमरे की खिड़की को देखते हुए कहा, और मुझे पता तक नहीं था कि ये तुम्हारा कमरा है। मैं समझता था ये वसीम का कमरा है। मैं तो कपड़े भी यहीं बदला करता था। सलार को कुछ तशवीश हुई। मुझे क्या पता था कि तुम क्या करते थे? मेरे कमरे की खिड़कियां तो बंद होती थी। क्यों? सलार ने कुछ हैरानी से पूछा। तुम शॉर्ट्स में फिरते थे ना बेडरूम में, इसलिए। और तुम्हारे ख्याल में खिड़कियां खुली रख सकती थी मैं? तुम्हें कोई शर्म ही नहीं थी? तुम कैसे इस तरह से अपने बेडरूम में फिर लेते थे? वो अब आंखें साफ करते हुए इस पर खफा हो रही थी। इसे अंदाजा नहीं हुआ कि इसने कितने आराम से इसकी तवज्जो इस तरफ से हटाई थी। तुम किस तरह के इंसान थे? सलार ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। तुम्हें खाने का कहने आया था। तुम चेंज कर लो तो चलते हैं, इसने यकदम बात बदलते हुए अमामा से कहा। इसने सलार के तासुरात नहीं देखे। वो एक बार फिर खिड़की से नजर आने वाले घर को देख रही थी। वो तकरीबन 2 बजे कमरे में आया और इसका ख्याल था कि अमामा सो चुकी होगी, मगर वो अभी भी खिड़की के सामने बैठी हुई बाहर देख रही थी। इसके घर की लाइट्स अब ऑफ थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर इसने गर्दन मोड़कर सलार को देखा था। सो जाना चाहिए था तुम्हें अमामा, इससे नजर मिलने पर सलार ने कहा। वो खिड़कियों के आगे कुर्सी रखे दोनों पांव ऊपर किए घुटनों के गर्द बाजू लपेटे बैठी थी। सो जाऊंगी। वहां सब सो चुके हैं, देखो लाइट्स ऑफ हैं सब बेडरूम्स की। वो दोबारा गर्दन मोड़कर बाहर देखने लगी। सलार चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर वॉशरूम में चला गया। 10 मिनट बाद कपड़े तब्दील करके वो सोने के लिए बेड पर लेट गया। अमामा अब बस करो, इस तरह देखने से क्या होगा? बेड पर लेटे लेटे इसने अमामा से कहा। मैंने कब कहा कि कुछ होगा? तुम सो जाओ। तुम वहां बैठी रहोगी तो मुझे भी नींद नहीं आएगी, लेकिन मैं यहीं बैठूंगी, इसे जिद्दी अंदाज में कहा। सलार को इसकी जिद ने कुछ हैरान किया। चंद लम्हे से देखने के बाद इसने फिर कहा, अमामा तुम अगर बेड पर आकर लेटोगी तो तुम यहाँ से भी अब तुम्हारा घर नजर आता है। सलार ने एक बार फिर कोशिश की थी। यहाँ से ज्यादा करीब है। वो इस बार बोल नहीं सका। इसके लहजे में मौजूद किसी चीज ने इसके दिल पर असर किया था। चंद गज का फासला इसके लिए बेमायने था। वो इसका घर नहीं था। चंद गज की नजदीकी इसके लिए बहुत थी। वो 9 साल बाद इस घर को देख रही थी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।